Good morning, everyone. In today's class, we are going to revise some more topics related to electrostatics. In previous class, we have revised the electric field and electric field for a dipole. And now we are going to study what is Gauss theorem, which is a very important topic. One question, whether it is derivation or it is definition or it is application based question, there is always one question related to Gauss theorem which asked in CBSE examination. Alright, so what is Gauss theorem? We have already studied that the total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. So what is important in this? You have to always understand the meaning of this dot product and this vectors also. Just because in physics we usually mark everything including symbols, dot products, cross products and integral values और ये इंटीग्रल के साथ जो ये सिंबल है सरफेस इंटीग्रल का, these all are have their own importance. Alright, so you have to be very careful when writing this expression in any of the laws or any of the equations. Alright, so see, it is Gauss law or Gauss theorem talks about a closed surface. So usually we consider a regular closed surface means not an irregular surface. तो हमने क्या लिया कि मान लीजिए एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, just because we have a basic idea that charge Q, if it is a point charge, then it has a Gaussian surface which is symmetric and it is spherical, or we can say spherical symmetric. So we will consider a Gaussian surface which is around this charge, and at that particular Gaussian surface, if we want to calculate the electric field, or then we can say consider a very small element, एक एलिमेंट एरिया एलिमेंट लिया. मान लीजिए अगर इसका रेडियस हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है, देन फॉर दैट एलिमेंट, अब हमको पता है कि उस सेंटर से एलिमेंट पे जो रेडियस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कर रहा होगा क्योंकि हमने स्फीयर ड्रॉ किया है. तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. सो दिस बोथ E and ds हैव सेम direction and their angle will be 0. So it is talking about the Gauss law talks about that the total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. Flux क्या होता है? E dot ds, ठीक है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई द एरिया. तो E इंटू ए जो हम पढ़ते थे वो यहाँ चूँकि हम ए इंटू ना पढ़ के डॉट इसलिए पढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट डायरेक्शन ऑल्सो. तो ई डॉट डी एस ये एक छोटे एलिमेंट के लिए लिया, लेकिन उसी को इंटीग्रल करके यानी इस छोटे एलिमेंट को इस तरह के नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कैन कंसिडर इट ऑन द सरफेस. दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द इंटीग्रल साइन दिस. ऑलराइट, दिस इंटीग्रल साइन फॉर अ क्लोज सरफेस, एंड इट सेज दैट इट इज एक्चुअली द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई द एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे ई की जो वैल्यू होगी, ई कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए होता है ना. हमने देखा कि ये ई और डी एस की डायरेक्शन सेम है तो थीटा विल बी 0 एंड फ्लक्स थ्रू दिस एरिया डी फाई विल बी एरिया इंटू ई, है ना, ई डॉट डी एस. और डॉट प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. सो इट इज ई डी एस कॉस 0 और ई डी एस. तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हमारा मिल रहा होगा दैट विल बी for total we have to consider whole surface. E is constant because we have considered the regular surface which is Gaussian spherical symmetric surface. तो इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा E इंटू क्लोज इंटीग्रल डी एस, और वो टोटल एरिया सरफेस एरिया होगा. टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर के लिए, वही वैल्यू रख दिया. तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमें यहाँ पे गॉस थ्योरम का प्रूवमेंट भी मिलता है जो हमारा स्टेटमेंट था. तो इसका मतलब ये है कि गॉसियन सरफेस हमें जो प्रूफ जब करना है तो हमें क्या लेना है? प्रूफ करने के लिए हमें एक पॉइंट चार्ज का एक स्फेरिकली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेना है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रिस्ट्रिक्टेड हैं कि हमेशा एक जो इरेगुलर सरफेस है, रेगुलर सरफेस हमें वही लेना है. नहीं, कोई भी कैसा भी सरफेस हो
उसको अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हम पाते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये एक सरफेस है, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस, बट यहाँ पे क्या है, इसका एक छोटा टुकड़ा तो रेगुलर होगा ही होगा, बहुत छोटा टुकड़ा अगर हम एलिमेंट ले लें, एरिया एलिमेंट, और अगर हम इसको पूरे उसके लेंथ ब्रेड्थ के लिए इंटीग्रेट कर दें, यानी टोटल सरफेस एरिया के लिए इंटीग्रेट करते हैं, तो हम इस पूरे सरफेस एरिया को मान सकते हैं। मान लीजिए जैसे एक पोटैटो होता है, पोटैटो के अलग अलग सरफेस पे अलग अलग उसके चेंजेस होंगे उसके सरफेस के ओरिएंटेशन में, लेकिन अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हर सरफेस के लिए अपना खुद का एरिया वेक्टर मिलेगा, है ना, क्योंकि कोई सरफेस आगे उठा है, कोई सरफेस पीछे है, कोई झुक गया है, तो सभी के एरिया वेक्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मल टू द सरफेस होते हैं, अलग अलग मिलेंगे हर पॉइंट पे। बट जब एरिया वेक्टर और ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा सेम ही है, पॉइंट चार्ज अगर अंदर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ही तो चेंज होगा, हमारे डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। ई डॉट डी एस के साथ जो कॉस थीटा है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि मान लीजिए अगर एरिया वेक्टर सभी के में ऐसा था, ये वाले सरफेस पे ऐसा है, मान लीजिए कोई एरिया ऐसा भी बन जाता है ना, तो उसका एरिया वेक्टर इधर निकल आता है ना, एरिया वेक्टर ये निकल जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अगर मान लीजिए कंसिस्टेंट है और इसी डायरेक्शन में सब है, तो इस बार केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता और एरिया वेक्टर इनके बीच का एंगल चेंज हो जाता, लेकिन उससे कॉम्पनसेट कौन कर देता, ई डॉट डी एस में ई डी एस कॉस थीटा का थीटा, ठीक है। तो ये गॉस थ्योरम एक्सप्लेन करता कि ये जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, दैट विल बी इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, नाउ we are going to study a very popular question which is asked in previous 5 years at least 3 times. This question is asked and it is directly from NCERT also, that is why it is also important. So let's see what is this. See, this is the question. I have already solved it in our worksheets and homework also. See, here an electric field is uniform and in the positive x direction for positive x and uniform with same magnitude in the negative x direction for negative x. See, here E is equals to 2I and Newton per Coulomb and E is equals to minus 200I Newton per Coulomb for x smaller than 0, यानी x जब पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव x डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तब वो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 200I। I का मतलब 200 केवल x एक्सिस में, क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, I कैप है ये, ठीक है। तो I कैप 200 I कैप, तो 200 मैग्नीट्यूड I कैप x डायरेक्शन माइनस 200 I कैप मैग्नीट्यूड 200 माइनस की वैल्यू यानी उल्टा है पिछले वाले से और x डायरेक्शन में ही यानी निगेटिव x की तरफ, फॉर x इज स्मॉलर देन 0. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ द क्वेश्चन, a right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin and its axis along the x-axis. एक सिलेंडर को इस तरह से ओरिएंटेशन करके ऐसे रखा गया है कि उसकी एक्सिस इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और उसका ओरिजिन पे उसका सेंटर है. तो and its axis along the x-axis so that one face is at x equals to plus 10 centimeter and other is at x equals to minus 10 centimeter. यानी faces के बारे में बता दिया. This distance is actually 10 centimeter. This distance is also 10 centimeter, but it is in negative x direction. It is in positive x direction. Now, what is the net outward flux through each flat surface? What is the flux through the side of the cylinder? What is the net outward flux? We will take it one by one. All right. So first, what is the net outward flux through each flat? देखिए, जब net outward flux की बात है यानी हर surface से flux को हमें लेना है, जोड़ना है और net हमको मिल जाएगा. यानी flux जो होती है, देखिए flux is actually a scalar quantity, but consider this that flux जो है वो उसकी दिशा वैसे ही हो सकती है जैसे वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसकी अपनी दिशा होती है पॉजिटिव या निगेटिव. ठीक है, वैसे ही फ्लक्स होता है इनवर्ड या आउटवर्ड, तो उस वजह से हम कह सकते हैं पॉजिटिव या निगेटिव. सो लेट्स स्टार्ट.
फर्स्ट वन इज ऑन द लेफ्ट फेस ई इज इक्वल टू -200i, ये हमको पहले से पता है, ये वाला लेफ्ट फेस, ये वाला राइट फेस, यहाँ -200i है ई की वैल्यू, यहाँ ई की वैल्यू +200i है। ऑलराइट, दिस डेल्टा एस इज व्हाट, डेल्टा एस तो इधर ही होगा, है ना, और आई के कंपैरिजन में दिखा रहे क्योंकि वेक्टर फॉर्म दिखा रहे तो आई कैप के साथ, तो आई कैप इधर के लिए माइनस, इधर के लिए प्लस, तो इसीलिए माइनस साइन, माइनस डेल्टा एस आई कैप। नाउ द एरिया, जस्ट बिकॉज वी हैव द रेडियस ऑल्सो, यहाँ रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का सिलेंडर है, 20 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, 10-10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ऑलराइट, सो वी कैन कैलकुलेट द एरिया फॉर दिस सरफेस एंड दिस सरफेस ऑल्सो, कैलकुलेट इट। तो पहले लेफ्ट वाले के लिए करना है, कैलकुलेट कर लिया, इतना आ गया। नाउ द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस इज एक्चुअली व्हाट, ई डॉट डी एस, ठीक है, तो बस वही लेफ्ट के लिए करना है, ई डॉट डी एस 200, ई की वैल्यू कैसी, माइनस में थी, ये देखो दोनों माइनस मिलके प्लस हुआ है, ई भी माइनस में और ये भी माइनस में, दैट इज बाय 200 मल्टीप्लाइड बाई पाई, और जो भी एरिया है उसका। और देखिए यहाँ एक और चीज़, ये भी आई के फॉर्म में, ये भी आई के फॉर्म में, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है कैप में, ठीक है, तो 1 वैल्यू क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं, आई डॉट आई 1 ले लेंगे। अब देखिए फाई क्या हो गया, फाई स्केलर आ गया, देखिए इसमें स्केलर कोई वेक्टर की फॉर्म नहीं है, एंड दिस विल बी द रिजल्ट फॉर लेफ्ट। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट इट फॉर राइट ऑल्सो, ई को पॉजिटिव लेना है, डेल्टा एस भी इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगेन अ पॉजिटिव एंड सेम जो भी वैल्यू आ रही है वो होना ही था, क्योंकि जब सारी वैल्यू सेम है तो वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा, बट डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगी, यानी इधर फ्लक्स जो होगा वो इधर की तरफ होगा, इधर फ्लक्स जो होगा वो इधर की तरफ होगा। आउटवर्ड फ्लक्स, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्लक्स को आउटवर्ड और इनवर्ड से पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करते हैं। अगर दोनों ही आउटवर्ड हैं और मैंने आउटवर्ड को पॉजिटिव माना है, इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तो ये देखो दोनों पॉजिटिव आया हुआ है, इसीलिए इसने कहा पॉजिटिव साइन लगा के दिया है। ऑलराइट, नाउ द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द राइट फेस इज इतना, लेफ्ट फेस इज उतना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जरा ये बताइए कि टोटल फ्लक्स यहाँ से कितना जा रहा है, ठीक है ना, सबसे पहले एक काम करते हैं, साइड वाले को अब कंसिडर कर लेते हैं, अगल बगल तो ले लिया, फिर हम लास्ट में टोटल की बात करेंगे। तो साइड के लिए अब बताओ, देखो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऐसे है। अब ई डॉट डी एस में, ई और डी एस के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, then that will be cos 90 will be 0. So E dot ds will be E ds cos 90 and that will be 0. It means the flux through the sides or the circle जो आपका ये जो lateral वाला जो पोर्शन है वहाँ से फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो अब हम इजीली कह सकते हैं कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स को हम कैसे नोट करें, आउटवर्ड इनवर्ड कुछ भी, जो टोटल नेट फ्लक्स है that will be the sum of total flux, इधर कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, तो दोनों का एडिशन डबल हो जाएगा, so that will be how much, see here it will be added up and it gives 3.14 Newton meter square per coulomb. Alright, now अब अगर आपसे कहा जाए कि ये फ्लक्स मैंने आपको दे दिया टोटल, now we want to calculate the total net charge inside the cylinder, उसी नेट चार्ज के कारण तो फ्लक्स निकला है, क्योंकि जब इधर भी बाहर ही आ रहा है आउटवर्ड फ्लक्स, एक साइड से बाहर ही आ रहा है आउटफ्लक्स फ्लक्स, इसमें देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी, और अंदर कहीं से नहीं जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज था तभी फ्लक्स बाहर निकल के आ रहा है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं सकता कि कहीं जीरो से कहीं कोई चार्ज डिसाइड हो रहा होगा, चार्ज या फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, देयर मस्ट बी सम चार्ज, और बस वही है यहाँ पे कि वही चार्ज हमको निकालना है। तो चार्ज के लिए हम गॉस लॉ यूज़ कर लें। गॉस लॉ सेज दैट टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो टोटल फ्लक्स फाई विल बी इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, पुट दिस वैल्यू, q विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई द टोटल फ्लक्स, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और फाई, ये जो आपका फाई ई टोटल फ्लक्स हमने निकाला, एंड दिस इज योर चार्ज, जितना चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज आस्क्ड 3 टाइम्स टिल सिंस 2016। ऑलराइट, तो आप इसको देख सकते हैं। नाउ one more revision from this first chapter also, this is again a very important question, and it is also asked multiple times in derivation part, 5 marks. It is the electric field due to an infinitely long charged wire. देखिए, infinitely long charged wire means charges are distributed linearly infinitely, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेज हैं, उनको इनफाइनाइटली एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है, तो वो एक
इस तरह की स्ट्रिप बना लेंगे जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। अगर मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे ऐसे स्ट्रिप। अब आप जरा सोचिए, इनफाइनाइट लेंथ के बारे में सोचिए। आपको कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिए गए हैं जो सिमिलर हैं, एक दूसरे को रिपेल बराबर से करते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव इक्वल एलिमेंटल मैग्नीट्यूड। मीन्स एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है आपको पता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। इसका मतलब सभी इंडिविजुअल चार्जेस का इतना ही होगा चार्ज, तो वो सभी एक दूसरे पे इतना ही फोर्स लगाएंगे। अगर हम उनको इकट्ठा करके रखना चाहें और केवल एक लाइन में अरेंज करना चाहें और वो इनफाइनाइट तक फैले हों, तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि दे विल प्लेस देमसेल्व्स एट सच पोजीशन दैट देयर इंटर डिस्टेंस, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी विल बी इक्वल। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइटली दूर तक फैले हैं और सभी एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। यानी इनके बीच का जो अरेंजमेंट है ये एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, सभी बराबर दूरी पे हैं। तो ये सबसे पहली बेसिक कंडीशन होती है लीनियर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की। उसके बाद अब देखिए बात क्या है, यहाँ पे ऐसा एक अरेंजमेंट था, इस चार्ज के लिए हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। इस अरेंजमेंट के कारण अप्लाई गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन of charge with a uniform charge density lambda coulomb per centimeter. It is the clue that we have to use charge density lambda. It is linear charge density. So all things are same. We have to apply Gauss theorem. For applying Gauss theorem, we need a Gaussian surface. अब जरा सोचिए कि अगर एक चार्ज है, हर एक चार्ज अपने आप में एक स्फेरिकल Gaussian surface बनाना चाहता है, ठीक है, लेकिन जब इस तरह के नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो उनकी फील्ड लाइंस जो चारों तरफ निकलनी चाहिए थी वो कैसे निकल रही होगी, वो इस तरफ वाली। देखो ऐसा अरेंजमेंट होता है, मैं एक रफ बना के आपको दिखाई देता हूँ किस तरह से हो सकता है वो। मान लीजिए ये चार्ज है ना, ये अभी तो ऐसे ऐसे अपनी चारों पांचों दिशाएं, जितनी भी दिशाएं हैं या 8 दिशाओं में भेज देगा, लेकिन आपकी तरफ भी, आपके अवे भी, यानी पेज के अंदर भी। ये तो एक यूनिफॉर्म सिंगल चार्ज है। नाउ इफ आई एम अरेंजिंग अ पॉजिटिव चार्ज हियर ऑल्सो, तब ये इस वाली फील्ड लाइन को धक्का देगा, ये दोनों फील्ड लाइन दूर दूर हटने लग जाएंगी, है ना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे ये इधर फील्ड लाइन भेजने वाला था कि मैंने यहाँ पे भी चार्ज खड़ा कर दिया। अब इसने क्या किया, इधर वाली फील्ड लाइन को भी धक्का दिया, ये ऐसे हो गया और ये बहुत क्लोज किया गया, मैंने इनको बहुत क्लोज किया। अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पे अरेंज हो रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस लगाएंगे। तो अब ये जो फील्ड लाइन्स हैं ये इधर नहीं आ पाएंगी, सब एक दूसरे से दूर भागेंगी और इस तरीके की अरेंजमेंट है। पॉजिटिव 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 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, दे विल हैव फील्ड लाइन्स ओनली रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से अरेंज। उधर भी ऐसे भी, लेकिन कैसे, केवल जैसे एक सिलेंडर के चारों दिशाओं में हम भेज सकते हैं उसके लैटरली आउटसाइड। यानी अगर एक सिलेंडर ऐसा है, इस तरह का एक सिलेंडर है, उसमें हमने यहाँ पे बीच में खूब सारे चार्ज प्लेस कर दिए, तो उसकी फील्ड लाइंस यहाँ पे इस तरह से अरेंज। और अगर हम इस वाले व्यू से देखें तो फील्ड लाइंस ऐसे 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 ही रहेंगी, कभी इधर निकल के नहीं आएंगी, तिरछा नहीं आएंगी। दे विल बी रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के बाहर की तरफ रहेंगी। इसका मतलब अब यहाँ पे फील्ड लाइंस जो हैं वो सभी इस डायरेक्शन में होंगी। लैटरली फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इधर कोई भी फील्ड नहीं होगा। और इसी कारण से अब हम इसको सरफेस बाय सरफेस ट्रीट करते हैं। जैसे सबसे पहले इस ऊपर वाले सरफेस की बात करें, ऊपर वाले सरफेस ये वाले में इलेक्ट्रिक वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ये होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 90 डिग्री हियर, क्योंकि ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, क्योंकि सभी फील्ड लाइंस एक दूसरे को धक्का देके ऐसे स्ट्रेट खड़ी हो गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री थी, यानी इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए और नीचे वाले सिमिलरली यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। अब केवल कहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड ये एरिया वेक्टर दीज आर along same direction for this lateral portion only, then this will be angle 0 and this will be E dot ds cos और या फिर कह सकते हैं E ds cos 0, and that is why we are adding it for 3 surfaces 1 2 3 ds1 ds2 ds3। ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है,
I am putting it for angle 90, 90 and 0, and only first one will survive, that is lateral portion. So the area, so this will be E into integral ds, and that is integral ds is actually the area of the कर्ल सरफेस और कर्व्ड सरफेस. कितना होगा, 2 पाई RL होता है सिलेंडर का, तो ये वैल्यू हमने रख दी. एंड वी हैव गॉट दिस इक्वेशन phi is equal to into 2 pi RL. But we have one more question, that what is the total charge on this surface? If I say this length is infinite, लेकिन ये infinite length को भी define कर दिया कि ये L length है, infinite length is actually L, then this L length will be multiplied by the length per charge per unit length, and that will be the total charge. So it is Q by Q is equal to lambda into L. Now putting it in our Gauss law, that is Q by epsilon naught is equals to total flux E dot 2 pi RL multiplied by Q equals to Q by epsilon naught. Q की जगह lambda L. Now we can get E by placing it here. So E is equals to lambda by 2 pi epsilon naught R, and it is the electric field for linear charge distribution. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, नहीं तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. ऑलराइट, नाउ इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर. यू कैन रिवाइज some basic like what are the properties of electric field lines, what are Gaussian surface, Gaussian surface क्या होते हैं, different type of charges के लिए Gaussian surface means isolated charge के लिए, dipole के लिए Gaussian surface कैसा होता है, dipole की field lines कैसी फॉर्म होती है, एक शीट है इनफाइनाइट शीट, उस पर अगर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इनफाइनाइटली, then what will be the Gaussian surface for that. All right, these are the important questions. All right, one more thing is also there, that this time this spherical charge distribution is not included in our syllabus for CBSE, so you don't have to study this spherical distribution or यूनिफॉर्म चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, यानी स्फीयर और स्फेरिकल शेल से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है. एक क्वेश्चन इसमें और है, उसको भी देख लेते हैं. ये जो क्वेश्चन है डाइपोल से रिलेटेड, ठीक है ना, टॉर्क डाइपोल का, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है. देखिए, जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्मली इस तरह से न प्लेस होके किसी एंगल पे अगर प्लेस्ड है, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ डाइपोल, ये पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक टॉर्क फील करेगा, बिकॉज बोथ द चार्ज विल फेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. तो वहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, जैसा कि हम यहाँ बना भी सकते हैं. मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, एंड दिस इज डिनोटेड बाई ई. ऑलराइट, if I want to place a dipole like this and this has very small separation, it is 2a or 2l, 2a कह लेते हैं. This is its center. As we know, for electric field to be in this direction, the positive charge will be here, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा, निगेटिव इधर होगा. Then this positive charge will face repulsion from here and attraction from here, and it will face a force like this. This is force. Similarly, this negative charge will face force in this direction, equal and opposite, because charges are equal and opposite in the same electric field. ठीक है, तो ये दो फोर्स कौन कौन से हैं. पहला फोर्स होगा Q इंटू E, है ना, F इज इक्वल टू Q इंटू E, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस Q बाई फील्ड E. Similarly, force exerted on charge minus Q by field E, it is minus QE. Value same, direction opposite. So the total force will be what? Force calculate कर रहे हैं, equal और opposite हो गए ना, तो जीरो हो गए. लेकिन चूंकि ये एक लाइन के along काम नहीं कर रहे हैं, they are not linear, they are not in line, they have some separation, तो हम ये कह सकते हैं कि they will form a torque. ठीक है, तो अब उस टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे टॉर्क फॉर्म कर रहे हैं. देखिए ये यहाँ पे ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये वाला फोर्स का, और ये वाला इसका, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ये वाले को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इफ दिस एंगल इज द ओरिएंटेशन इज थीटा, ये जो डाइपोल का ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड से, दैट इज थीटा, ये एंगल थीटा है, देन दिस
हियर टू हियर परपेंडिकुलर लेंथ, आपको ये पता होगा कि फोर्स ऐसे, इनके बीच एंगल, और ये दो फोर्सेस अगर काम कर रहे हैं, इनके बीच के ये लेंथ L है ना, तो ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, R क्रॉस F, हमने ये देखा है। तो इनके बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस वन फोर्स, किसी एक का फोर्स। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, दैट विल बी, दिस लेंथ इज 2a, दिस इज perpendicular upon hypotenuse is sin theta, so 2a sin theta, this is the relation. So we can write torque tau is equals to R cross F, हम कह सकते हैं। so R is 2a sin theta, ये वाला sin theta क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ F is equals to QE, so 2a sin theta मल्टीप्लाइड बाई QE, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये लेंथ जो है हमारी, ये क्या है, ये वाला ये है वेक्टर फॉर्म में। तो ये जो रिलेशन है ये क्या होगा, 2AQ, ये मिलके क्या बना रहे होंगे, ये 2QL क्या होता है, ये होता है डाइपोल मोमेंट। तो P लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको अभी वेक्टर नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, यहाँ इस तरह मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं। तो ये इसका QE का मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड लेंथ का, ये तो एक्चुअल में खुद ही मैग्नीट्यूड है। तो ये हो जाएगा 2AQ मिलके बनाएगा P साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई का साइन है अभी, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई साइन है, अभी क्रॉस नहीं है, और ये हो गया QE का मॉडुलस। सो दिस रिलेशन विल बी P साइन थीटा, और E का क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा भी इन्वॉल्व है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में, टाउ वेक्टर विल बी दिस थिंग। तो ये हमारा टॉर्क है जो उस पर काम कर रहा होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। स्टेबल एंड अनस्टेबल कंडीशन भी हमने इसको पढ़ रखी थी, व्हेन दिस विल बी मैक्सिमम एंड व्हेन दिस विल बी मिनिमम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल revise second chapter and third chapter also. All right, thank you.